عام خبر دیں گے وزیراعظم سے چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کی ملاقات ہوئی ہے۔ رانا مشہود نے وزیراعظم کو یوتھ پروگرام کے تحت جاری منصوبوں سے آگاہ کیا ہے، جبکہ روزگار کے مواقع کے لیے مؤثر حکمت عملی سے کام کیا جائے۔ وزیراعظم نے ہدایات جاری کی ہیں۔ تعلیم یافتہ ہنرمند نوجوان ہماری قوم کے تابندہ مستقبل کے ضامن ہیں۔ ہنرمند افرادی قوت ملکی معیشت میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ بول نیوز فات چودھری سے۔ فات بتائیے گا۔ جی دیکھیے، وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود نے ملاقات کی۔ ملاقات میں رانا مشہود نے وزیراعظم کو یوتھ پروگرام کے تحت جاری منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ پروگرام کے منصوبوں کے تحت روزگار کے مواقع کے لیے مؤثر اور جامع حکمت عملی پر بھرپور انداز میں کام کیا جائے۔ وزیراعظم نے کہا کہ نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل مہارتوں اور کاروباری صلاحیتوں سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حکومت نوجوانوں کو روزگار، کاروبار، تعلیم اور ہنر کے یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے اور ہنرمند افرادی قوت ملکی معیشت، صنعت اور معاشرتی تنوع میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ تعلیم یافتہ ہنرمند نوجوان ہماری قوم کے تابندہ مستقبل کے ضامن ہیں۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور پھر بتائیں کہ سرجانی ٹاؤن میں گاڑی سے ملنے والی لاش کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ جلی ہوئی لاش تاجر کی نہیں، مظفر گڑھ کے رہائشی کی بتائی جا رہی ہے۔ بائیو میٹرک کی تصدیق سے لاش کی شناخت کر لی گئی ہے۔ تاجر کے قتل کا تاثر دینے کے لیے مبینہ ڈرامہ رچایا گیا۔ جلی ہوئی گاڑی سے تاجر کا موبائل جبکہ شناختی کارڈ، ویڈیو پیغام برآمد ہوا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد کاشن سے۔ کاشن بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں سرجانی ٹاؤن 0 پوائنٹ کے قریب گاڑی سے ملنے والی جلی ہوئی لاش تاجر کی نہیں بلکہ دھوکہ دہی کا ڈرامہ نکلی۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مقتول کی اصل شناخت کا سراغ لگا لیا۔ پولیس کے مطابق گاڑی سے ملنے والی جلی ہوئی لاش مظفر گڑھ کے رہائشی قربان کے جو کافی عرصے سے لاپتہ تھا، ان کی شناخت بائیو میٹرک کی تصدیق کے ذریعے کی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر اسے چاول کے تاجر ذیشان ناز کی لاش قرار دیا گیا تھا، جن پر مبینہ طور پر 60 سے زائد افراد کے 55 کروڑ روپے سے زائد قرضہ پاسبل ادا ہے۔ مقتول کی بیوی نے لاش کو شوہر کا شناختی کارڈ اور دیگر اشیاء دیکھ کر شوہر کے طور پر شناخت کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تاجر نے مبینہ طور پر انویسٹر کو دھوکہ دینے کے لیے اور خود کو مردہ ظاہر کرنے کے لیے ڈرامہ رچایا تھا۔ گاڑی سے ذیشان کا ذاتی موبائل فون اور ایک ویڈیو پیغام بھی ملا جس میں کہا گیا تھا کاروبار سے گھر والوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گزشتہ روز کار کے اندر سلنڈر رکھ کر لاش کو جلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ کار میں آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے آگ بجھ گئی تھی اور گاڑی میں موجود شخص مکمل طور پر نہیں جل سکا تھا۔ پولیس کے مطابق مقتول قربان کی بھی 2 شادیاں تھیں۔ پولیس کی جانب سے مفرور تاجر ذیشان ناز کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور مزید تحقیقات اور تفتیش کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی عزیز آباد میں گھر میں فائرنگ سے باپ قتل، بیٹا زخمی ہو گیا ہے۔ مقتول کی شناخت 55 سالہ سمیع الدین کے نام سے ہوئی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ 28 سالہ فصیح رحمانی کو جن اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ جائے وقوع سے تمام شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ کراچی عزیز آباد میں گھر میں فائرنگ سے باپ قتل جبکہ بیٹا زخمی ہو گیا ہے۔ مقتول کی شناخت 55 سالہ سمیع الدین کے نام سے ہوئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا ہو یا پھر سستا، حکومت نے تو پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنے کی قسم کھا لی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 63 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 81 پیسے مقرر کر دی گئی۔ دوسری جانب ڈیزل بھی 1 روپے 55 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے، جس سے ڈیزل کی نئی قیمت 388 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اور گزشتہ روز 1 روپیہ کم کیا، آج واپس بڑھا دیا۔ عالمی منڈی میں گراوٹ کے باوجود بھی پاکستانیوں کے لیے پیٹرول کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں۔ شہری اس پر برس رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ غریب بندے ہمارا سارا دن بائک کا کام ہے، ہم پیٹرول بھروا کر تھک گئے یار۔ بس یہ انہوں نے مذاق بنا رکھا ہوا ہے، کبھی جب ریٹ کم کرتے پیٹرول والے پیٹرول پھر نہیں دیتے۔ ابھی کل ہی ایک جو نا رات 1 روپے 63 پیسے پر بڑھا دیے کیونکہ پریشان ہو گئے۔ اب کیا کریں، ہم روز کے ہمارا کام ہے باہر جانے کا۔ مہنگائی پیٹرول نے ہماری کمر توڑ دی ہے۔ جب 1 روپے جب سستا ہو جاتا ہے اس کی بجائے ہم لوگوں کو سستا نہیں ملتے، اور جب 20 روپے کا مہنگا ہو جاتا ہے ہم لوگوں کو 20 روپے کے حساب سے مہنگا مل جاتا ہے۔ آج تک ان حکومتوں کو یہی نہیں اسٹیبلٹی آئی کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اس کو اسٹیبل کس طرح کیا جاتا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو اور ترقی دے اور آپ لوگوں کو اور ہمت دے
कि जो आप हमारे साथ कर रहे हैं, हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। बढ़ाते हैं तो 7 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये, कम करते तो कभी 30 पैसे कर देते, कभी 1.5 रुपये कर देते, हम तो यूज टू हो गए। अब ये 1 रुपया कम करते हैं, 25 रुपये बढ़ाते हैं, 20 रुपये बढ़ाते हैं, 5 रुपये बढ़ाते हैं, करते 1 रुपया है कम है। इसकी लेवी जो है वो सबसे बड़ी वजह है पेट्रोल महंगा होने की। लेवी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इस पर लगाई जा रही है। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हाई जा रही हैं, हम नहीं डलवा सकते। मशरिक़ वस्ता में जंग मज़ीद फैलने लगी है। सऊदी अफवाज ने अमरीकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर इराक़ में ईरानी नवाज़ ग्रुपों के ठिकानों पर हमले किए हैं। बसरा, वास्त, करबला और निनवे में कायम इराक़ी मलेशिया के ठिकानों जबकि असले के गोदामों और लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाया गया। सऊदी हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई तेल तनसीबात पर ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मज़ीद गहरे हो गए। अमरीका ईरान कशीदगी में फिर शिद्दत आ गई। सऊदी अरब और अमरीकी सेंट्रल कमांड की मुश्तरका कार्रवाई। अमरीकी और सऊदी अफवाज ने इराक़ी मलेशिया पर फ़िज़ाई हमले किए। ईरान नवाज मुसल्लह ग्रोहों को निशाना बनाया। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक कार्रवाई तेल तनसीबात पर ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। इससे कबल ईरान ने उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज़ पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक अपने हरमोस में वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बनाया गया। उर्दन के हुक्काम का कहना है कि ईरान से आने वाले 5 मिसाइल नाकारा बना दिए। हूसियों ने सादा में पुलिस जासूस ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कतर, बहरीन और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से अहम टेलीफोनिक राबते किए। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खलजी वज़ीर ख़ारजा ने समंदरी रास्तों की आज़ादी और महफूज बहरी आमदोरफ्त की अहमियत पर जोर दिया। ईरान नवाज ग्रुपों के हमलों की मज़म्मत करते हुए ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुआहदा ना करने की सूरत में पिकैक्स पहाड़ी और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी दे डाली है। बोले कि 2 घंटों से भी कम वक्त में बड़े पुल और 1 दिन में जौहरी तनसीबात को तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर धौंस धमकियों से बाज न आए। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को तड़ी लगा दी। बोले मुआहिदा ना हुआ तो अपना अधूरा मिशन पूरा करेंगे। अमरीकी न्यूज चैनल को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। डील ना हुई तो पिकेक्स पहाड़ी, जौहरी तनसीबात, पुल और दीगर अवामी तनसीबात को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि हमारी पोजीशन इंतहाई मजबूत है। 2 घंटों से भी कम वक्त में ईरान के बड़े पुल और 1 दिन में जौहरी तनसीबात तबाह कर देंगे। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। बरतानवी खाम तेल के नर्ख 3% इजाफे से $87 फ़ी बैरल तक पहुँच गए हैं, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत भी 3% बढ़कर $82 फ़ी बैरल की सतह पर पहुँच गई। और नाजरीन, गजा में जंग की तबाहाल दीवार पर अपनी मोहब्बत के रंग बिखेरने वाली नन्ही लियान अलकुका ने स्पेनी वज़ीर आज़म पेड्रो की तस्वीर बनाकर दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा दी है। पेड्रो सैंचेज़ ने जवाब देते हुए कहा है कि स्पेन तुम्हें कभी नहीं भूलेगा और फ़लस्तीनी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा करते हुए गजा के साथ अपनी हिमायत एक बार फिर दोहरा दी। लाहौर में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल ने एंट्री दे दी है। शदीद बारिश से लाहौर के मुतादिद नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शहरियों का कहना है कि निकासी के नाक़िज़ इंतज़ामात के बायस पानी 2 रोज़ तक जमा रहता है, जिससे मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। मज़ीद जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ अरीबा आफ्ताब से। अरीबा बताइएगा। जी बिल्कुल, कैनाल बैंक हाउसिंग स्कीम पर मौजूद हूँ और आप देख ही सकते हैं यहाँ का मंजर। मानसून बारिशों के बाद यहाँ पर गली और जो सड़कों पर ये जो है गली और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगे और बारिशी पानी अभी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि बारिश का सिलसिला तो थम चुका, लेकिन निकासी आब का अमल जो है वो अभी भी यहाँ पर यकीनी तौर पर अमल में ना लाया जा सका। और अब सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो बारिशी पानी है अब ये सड़कों और गली से गुजरता हुआ घरों में दाखिल हो रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आप देखें, हमारे घरों में पानी दाखिल हो चुका हुआ है। आप यहाँ से देखें कि 1.5 किलोमीटर तक आप अगर नज़र दौड़ाएं तो आपको सड़क पे पानी ही पानी नज़र आएगा। पानी जो है वो 4-4 फुट जो है वो घरों में दाखिल हो चुका है। और आप देखें कि क्या आपको यहाँ पर कोई वासा का अहलकार या कोई अमला जो है वो नज़र आ रहा है। और मेरी गुजारिश है कि ये पानी को जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, यहाँ पर मस्जिदें भी मौजूद हैं, यहाँ पर तलीमी इदारे भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद
दिक्कत का सामना करना पड़ा। शहरियों का यही शिकवा है और हुकूमत से मुतालबा है कि पानी की निकासी को जो है मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया जाए ताकि दोबारा मानसून बारिशों के सबब इस हवाले से आप आगाह करिए अरीबा, आपका बेहद शुक्रिया। नाजरीन, पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में धांधली के इल्ज़ामात पर मरियम नवाज की जानिब से तंजिया रद्द अमल सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब ने एक्स पर लिखा कि पीपल्स पार्टी तो खुद धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है और पीपल्स पार्टी ही धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? आपको बता रहे हैं कि इससे पहले लफ्जी गोलाबारी की गई है और अब एक्स का सहारा लेते हुए एक पैगाम जारी किया गया। मरियम नवाज रद्द अमल दे रही हैं, कहा कि पीपल्स पार्टी तो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है और पीपल्स पार्टी ही अब धांधली का रोना रो रही है। उन्होंने तंजिया अंदाज से पूछा कि क़यामत कितने बजे है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मरियम नवाज की तकरीर को चोरी और ऊपर से सीना जोरी करार दे दिया। बोले कि मरियम की तकरीर से ऐसा लगा कि वो इक़्तिदार के गुरूर में खिताब कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली के जरिए अवामी मैंडेट चुराया गया। मरियम नवाज इस्तीफ़ा देकर पंजाब के किसी भी हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़े। पीपल्स पार्टी भी सिंध में अपने अरकान के इस्तीफ़े देकर अवामी फैसला कबूल करने को तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का टीवी पे एक रिकॉर्डेड खिताब सुना। मिसाल है कि जी एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, जो इक़्तिदार का गुरूर और तकब्बुर है, उसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो अपना खिताब किया। जिस तरीके से मासूम मजलूम कश्मीरियों का वोट का हक उस पर डाका डाला है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने। मैं एक और खुला चैलेंज करता हूँ, आप कोई भी पंजाब का हल्का आप चुन लें, आप इस्तीफा दे दें मोहतरमा साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहिबा, और दोबारा किसी भी इलेक्शन से पंजाब की किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के दिखा दें। हम भी आप इस्तीफा देते हैं, हम भी किसी भी सीट से जो इलेक्शन लड़ते हैं सिंध से, तो देखें कि सिंध की आवाम हमें इलेक्शन में वोट के देके कामयाब करेंगे और पंजाब की आवाम आपको किसी भी हल्के से कामयाब नहीं करेंगी। पाक में इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को लेकर लफ्जी जंग तेज हो गई है। नून लीग की क़यादत ने बिलावल भुट्टो और शर्जील मेमन के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा, नताइज तस्लीम ना होना हवास बाख्तगी का सबूत है, जिसको एतराज़ है वो कानूनी रास्ता इख्तियार करे। वफाक में इत्तेहादी लेकिन आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मैदान में आमने सामने नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को करारा जवाब दे दिया। बिलावल भुट्टो के बयानात पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जिसको सीट्स वापस चाहिए वो कानूनी रास्ता इख्तियार करे। जब फिर रिजल्ट सामने आ जाए तो हमारे यहाँ पे हार को कबूल नहीं किया जाता, वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें जो अदालत का या इलेक्शन कमीशन का फैसला हो वो एक्सेप्टेबल होगा। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम ने कहा कि ये कहना कि अगर लोग पीपल्स पार्टी को वोट दें तो कश्मीर के मुफाद में है, लेकिन अगर नून लीग को वोट दे तो कश्मीर के मुफाद में नहीं है। बिलावल का ये बयान समझ से बालातर है। मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर ये बात में समझ नहीं आ रही कि अगर पीपल्स पार्टी को वोट दे दे कोई कश्मीर की मफाद है, अगर मुस्लिम लीग की नून को दे दे तो उसकी मफाद नहीं है, तो ये क्या बात हो गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पीपी की धांधली पकड़ी गई तो शोर मचा दिया। ये जो कह रहे हैं ना धांधली हुई है, ये कोटली के अंदर धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश करते करते पकड़े गए तो उल्टा शोर मचाना शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन को मुखातिब करते हुए कहा कि प्यारे भाई ठंडा पानी पिए, सर पर भी डालें। कश्मीरी आवाम ने फैसला सुना दिया है। आज़ाद कश्मीर में आप हार गए हैं तो वहाँ धांधली हुई है। कौमी मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे, सिस्टम हार गया तो जमहूरियत का नुकसान होगा, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। इस तरह की चीज़ें किसी के मफाद में नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने सवाल उठा दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही हल्के में एक जगह 25% टर्नआउट हो और दूसरी जगह 90%। मुतालबा किया कि पीपल्स पार्टी के एतराज़ात का इज़ाला किया जाए। बोले दूसरे मरहले में यही कुछ दोहराया तो बर्बादी होगी। बंदा शायद जीत जाए वो हार जाए, सिस्टम को जीतना और हारना नहीं चाहिए। सिस्टम अगर हार गया ना जनाब तो फिर ना कुछ आपके हाथ आएगा ना हमारे, इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ रिकॉर्ड के साथ। ये 26 पोलिंग स्टेशन और इन पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ ये साबित करवा लें कि भाई जहाँ 25% से ज्यादा जो है वो टर्न आउट नहीं हो रहा, यहाँ 90% कैसे हो गया, और सिर्फ इन्हीं जगहों पर 90% हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, इनका अजाला किया जाए और ये इलेक्शन जहाँ जहाँ हमने आपको कहा है, जो पोलिंग स्टेशन जहाँ पर ऑब्जेक्शन है, जो दरखास्तें आई हुई है, उनके रिजल्ट रोके जाएं। 2 मरहले बाकी हैं। अगर आपने यही रिपीट करना है पहला मरहला, तो ये तबाही। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।